فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو صرف رقم سے غرض ہے، تہذیب نے سنگ دلی سے کہا۔ اسے حرف آخر سمجھو۔ نہیں پلیز نہیں، اوشیل میکائل گڑ گڑایا، یہ بہت بڑی رقم ہے، اسے ذہن سے نکال دو۔ تو پھر فارمولوں کو بھی ذہن سے نکال دو۔ میں نے کہا فارمولوں کا حصول صرف اس رقم کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اتنے سنگ دل نہ بنو، کیا اس رقم میں تھوڑی بہت رعایت بھی نہیں ہو سکتی؟ تم خوش قسمت ہو اوشیل کے سزا کے طور پر تمہیں صرف ایک حقیر سی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ تمہاری جان کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ جس رقم کو تم حقیر قرار دے رہے ہو وہ اتنی ہے کہ کئی پشتوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ گویا تم رقم ادا کرنے کے موڈ میں نہیں ہو۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں فارمولے فروخت کرنے کے لیے مجبوراً کسی اور سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ تمہارا جو جی چاہے کرو، لیکن میں اتنی بڑی رقم ہرگز ادا نہیں کروں گا، اوشیل نے بے جان سے لہجے میں کہا۔ وہ آخر وقت تک باؤ تاؤ کے موڈ میں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ رقم تو اس کا باپ بھی ادا کرے گا۔ وہ فارمولے اس کے لیے اتنے ہی اہم تھے کہ انہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن یہودی تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تھوڑا بہت فائدہ ہی ہو جائے۔ میرے خیال میں سودے بازی کے لیے محفوظ ترین پارٹی ہاروت رابیل ہوگا۔ میں نے اوشیل میکائل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہمیں اس سے دگنی رقم بھی ادا کر دے گا۔ نہیں، اوشیل میکائل نے بڑے کرب سے کہا، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں سوچنے کے لیے کچھ مہلت چاہتا ہوں۔ مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 گھنٹے کی مہلت دی جا سکتی ہے، لیکن اس دوران تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرے کسی فیصلے پر پہنچنے تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جانے کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے اوشیل، میں نے کہا، لیکن خیال رہے کہ 20 گھنٹے بعد حالات کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اوشیل میکائل نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر تہ خانے سے چلا گیا۔ جاتے وقت وہ مائکرو فلم میں اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جناب؟ ظاہر نے کہا، میں تو آپ لوگوں کی زندگی کی طرف سے مایوس ہی ہو گیا تھا۔ مایوسی گناہ ہے ظاہر، میں نے کہا، تمہاری خدمات اسی لیے حاصل کی گئی تھی کہ حالات پر ہمارا کنٹرول رہے۔ اوشیل اپنے ساتھ مائکرو فلمیں کیوں لے گیا ہے علی؟ تہذیب نے پوچھا۔ وہ کاروباری آدمی ہے تہذیب، کوئی فیصلہ کرنے سے قبل یہ اطمینان ضرور کرے گا کہ مائکرو فلمیں کہیں اصل فارمولوں ہی کی تو نہیں ہیں۔ یہاں تو اب کوئی بھی نہیں ہے جناب، ظاہر نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ضرور کرو ظاہر، میں نے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اوشیل نے ہمارے فرار کی ساری راہیں مسدود کر رکھی ہوں گی۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں جناب، ظاہر نے کہا اور اٹھ کر تہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور تہذیب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے تک ظاہر کی کوششیں جاری رہیں اور اس کے بعد تھک ہار کر وہ واپس آ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے جناب، اس نے جیپے ہوئے انداز میں کہا۔ واقعی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے ظاہر کہ تم نے آنکھ بند کر کے میری بات پر یقین نہیں کر لیا۔ ایک ایجنٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھو جناب؟ آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ جناب، ظاہر نے کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھے آنکھ بند کر کے یقین نہ کرنے کی تلقین کی ہے تو خود آپ نے اپنے اندازے پر کیسے یقین کر لیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے ظاہر۔ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہوتا تو میں کبھی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہتا۔ تو پھر آپ نے یہ بات مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتلا دی؟ ظاہر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تاکہ اپنے اس اندازے کی تصدیق کر سکوں کہ فرار کی راہیں مسدود کی جا چکی ہیں۔ اوہ، ظاہر نے کہا اور تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ لیکن جناب، اس نے دفعتاً چونک کر کہا، بڑ باہر موجود ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب تک وہ واپس جا چکا ہوگا، تہذیب نے جواب دیا۔ اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر 24 گھنٹے تک ہم اس سے رابطہ قائم نہ کریں تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عمارت پر چڑھائی کر دے، لیکن یہ ہدایات ہم نے محض احتیاطاً ہی دی تھی۔ میں نے کہا، اب اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پیش آئے۔
20 घंटे इस तह खाने में गुजारना तो बहुत मुश्किल होगा अली। तहजीब ने कहा, जरूरी तो नहीं है कि 20 घंटे ही लगें। ओशील की वापसी इससे कबल भी हो सकती है। वो कैसे? तहजीब ने चौंक कर पूछा। वो सिर्फ फार्मूलों की फिल्में चेक कराने गया है। जैसे ही उसे यकीन हो जाएगा कि फार्मूले नकली हैं, वो अपना फैसला सुनाने दौड़ा चलाएगा। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। कोई 6 घंटे बाद ओशील मिकाइल तह खाने में दाखिल होता नजर आया। वो बड़ा बुनाया हुआ नजर आ रहा था। उसने आते ही माइक्रो फिल्में मेरे सामने मेज पर फेंक दी। इन सब में बोक्स तहरीरें भरी हुई हैं। उसने बड़े गुस्से के आलम में कहा, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं मुतखय्यराना लहजे में बोला, ये बात तो हमने तुम्हें पहले ही बता दी थी। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं था कि इन फिल्मों में असली फार्मूले नहीं हैं। ये सरासर तुम्हारी अपनी गलती थी, जिसके लिए तुम हमें मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। तहजीब ने कहा, फजूल बातों से गुरेज करो ओशील और काम की बात करो। मैंने कहा, रकम की अदायगी के बारे में तुमने क्या फैसला किया? रकम कल दिन के 11 बजे तक अदा कर दी जाएगी। अदायगी किस शक्ल में की जाए? अदायगी की सूरत वही होगी जिसमें हमने एडवांस वसूल किया था, लेकिन ख्याल रहे कि ये रकम एडवांस की रकम से 3 गुना होगी। मुझे मालूम है, ओशील ने गुस्सीले लहजे में कहा। असल फार्मूले कहाँ हैं? जहाँ भी हैं बड़ी हिफाजत से हैं। मैंने संजीदगी से कहा, उनकी फिक्र में तुम्हें दुबला होने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हीं के इव्ज तो इतनी खती रकम अदा कर रहा हूँ। असल फार्मूले मेरे हवाले कर दो। तुम पागल हो गए ओशील? मैंने मुज़हिक्काना अंदाज में कहा। जो कुछ तुम कर चुके हो, उसके बाद भी तुम में इतनी जुर्रत मौजूद है कि अदायगी से कबल फार्मूले तलब कर रहे हो। तो फिर मुझे बताओ कि फार्मूले मुझे कब मिलेंगे? जब गोटे हिल के बैंक से रकम की वसूलियाबी की रसीद हमें मौसूल हो जाएगी। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि असल फार्मूले तुम्हारी तहवील में हैं? ओशील ने जिरा की। कोई सबूत नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हें हमारी जुबान पर यकीन करना होगा। जब तुम कोई सबूत पेश करने से कासिर हो, तो मैं तुम्हें रकम की अदायगी क्यों करूं? मत करो। हम तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे। हारूत राबेल हमें हाथों हाथ लेगा। उस खबीस का नाम मत लो मेरे सामने। ओशील मिकाइल ने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, हम तो किसी भी खबीस यहूदी का नाम लेकर अपनी जुबान नापाक नहीं करना चाहते, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। ओशील मिकाइल मुझे घूरने लगा, मगर उसने कुछ कहा नहीं। चंद लम्हे बाद बोला, रकम की तरसील के कागजात तुम्हारे हवाले करके मैं तुमसे असल फार्मूले ले लूंगा। तुमने खुद को जरा बराबर रायत का मुस्तहिक भी नहीं छोड़ा है ओशील। पहले ये मुमकिन था, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। जब तक रकम की वसूलियाबी की रसीद न मिल जाए, तुम्हें असल फार्मूलों और डिफोस्टर की हवा भी नहीं लगने दी जाएगी। ठीक है, ओशील ने एक सर्द आब भरकर कहा। जहाँ मैंने इतना इंतजार किया है, वहाँ थोड़ा सा सब्र और कर लूंगा। अब आए हो ना लाइन पर? मैंने कहा, वैसे तुम बेफिक्र हो, सारे मामला तय होने तक हम यहीं कयाम करेंगे। ओशील मिकाइल के चेहरे पर मेरी बात सुनकर कदरे बहाली के आसार पैदा हुए। लेकिन तुम्हारे वो साथी, उसने तशवीशनाक लहजे में कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। उनकी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं फोन पर उन्हें ताज़ा हिदायत जारी कर दूंगा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों तक पहुंचा दूं। ओशील मिकाइल ने कहा और हमें तहखाने से बाहर ले आया। मुझे और तहजीब को एक कमरा मिला था, जबकि जाहिर को हमारे बराबर वाला कमरा दिया गया था। कमरे में फोन मौजूद था। मैंने मौका मिलते ही बड को फोन कर दिया। वो होटल में अपने कमरे में मौजूद मिला था। मैंने उसे बता दिया कि हालात मामूल पर हैं। मुमकिन है मजीद 1 आध रोज तक हम वापस न आ सकें, लिहाजा हमारे अगले पैगाम का इंतजार करें। ओशील मिकाइल ने हमें मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह रखा था। तमाम मुलाज़मीन को हिदायत कर दी गई थी कि हर तरह से हमारा ख्याल रखें। उसके सारे कसबल निकल चुके थे और वो बिल्कुल सीधा हो गया था, लेकिन हमें मोहतात रहना था। वो अपनी फितरी कमीनगी तो जाहिर कर ही चुका था, इसलिए उससे किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। ये इत्मीनान बहरहाल था कि जब तक असल फार्मूले उसके हाथ नहीं लग जाते, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। और डिफोस्टर के बारे में तो मेरे, तहजीब और बड के अलावा किसी को भी मालूम नहीं था कि वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मुझे ओशील मिकाइल की तरफ से और कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन ये अंदेशा बहरहाल था कि उसने इस कमरे में ऐसे आलात न छुपा रखे हों जो उस तक इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू पहुंचा सकें। अगर ऐसा होता तो ये हमारे हक में सबसे खतरनाक बात हो सकती थी, इसलिए कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर वो उन हकायक से वाकिफ हो सकता था जो हमारे अलावा किसी के इल्म में भी नहीं थे और जिनका उसके इल्म में आना हमारे लिए हलाकत खेज साबित हो सकता था। मसलन ये कि डिफोस्टर मर चुका है
और ये कि असल फार्मूले मैंने अपने जूते की एड़ी में छुपा रखे हैं। ये सब कुछ सोचकर मैंने इशारे से तहजीब को अपने करीब बुलाया और उसके कान से मुंह लगाकर इंतहाई धीमी आवाज में कहा, मुझे शुबा है जान के इस कमरे में की जाने वाली गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकती है, इसलिए हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो हमारे मिशन से गैर मुतालिक होगी। तहजीब ने सर को इस्बाती जुम्बश दी और सोफे पर जाकर बैठ गई। बहुत अरसे बाद ऐसी तन्हाई मुयस्सर आई है, मैंने बुलंद आवाज में कहा, और तुम इतनी दूर जाकर बैठ गई। तहजीब ने मुझे घूर कर देखा। मत भूलो कि हम इस वक्त किसी और की कैद में हैं। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हम कैद में नहीं हैं, बल्कि मुआहदा तकमील को पहुंचने तक यहाँ मेहमान हैं। मुझे ओशील मिकाइल से इस हरकत की तवक्को नहीं थी जो उसने हमारे साथ की। तहजीब ने कहा, मैं खुद हैरान रह गया था। उसे किसी हाल में भी बदअहदी का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर इस सूरत में कि इसका वास्ता ग्रीन पूल से था। उसे मालूम है कि ग्रीन पूल का अव्वलीन उसूल दयानतदारी है और उसने आज तक अपने किसी भी मुवक्किल के साथ धोखा नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो तहजीब, जो धोखा देने के आदी नहीं होते वो धोखा खाने के रवादार भी नहीं होते। खैर, उसने जो कुछ किया उसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। अगर उसने ये हरकत ना की होती और शराफत से बकिया रकम अदा कर दी होती तो इस वक्त डिफोस्टर असल फार्मूलों समेत उसके कब्जे में होता। अब क्या इरादा है तहजीब? रकम की अदायगी के बाद फार्मूले उसके हवाले करने हैं या उसे मजीद सजा देनी है? उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, लिहाजा जैसे ही वो अदायगी कर देगा फार्मूले उसके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे ज़हन रसा का कायल हो गया। मैंने बाईं आंख दबाकर शरारत आमेज अंदाज में कहा, अगर तुमने जाली फार्मूले ना तैयार कर लिए होते तो इस वक्त हम इस जहाने फानी से कूच कर चुके होते। तहजीब मुस्कुराई। ये सब कुछ बहुत जरूरी था, उसने भी जवाबन बाईं आंख दबाकर कहा। उस वक्त तो तुम मेरे इकदामात की मुखालिफत कर रहे थे, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम किसी काबिल होते तो मैडम एक्स की जगह पर न होते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, वाकई तुमने उस वक्त जो कुछ किया था वो बहुत जरूरी था। तुम कई बार मेरी जगह लेने की कोशिश कर चुके हो। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि ताकत जहानत का मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल अंदाजा हो गया, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारी जहानत को सलाम करता हूँ, ऐसे नहीं। तहजीब ने कहा, अहद करो कि आइंदा कभी मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करोगे और मेरे नाइबे खसूसी की हैसियत से ही काम करते रहोगे। मेरी तोबा जो आइंदा ऐसा ख्याल भी जहन में लाऊं। मैंने कान पकड़ कर कहा, मुझे तो बस अपने कदमों में जगह दे दो। कदमों में जगह दी जा सकती है, तहजीब ने कहा। उसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैं इस एजाज के लिए मादाम एक्स का बेहद मशकूर हूँ, मैंने कहा और उठकर तहजीब के पैरों के पास जा बैठा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तहजीब मुझे वाकई अपने कदमों में बैठते देखकर बौखला गई। माजी में मैंने कई बार तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करके तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है उसका अजाला कर रहा हूँ, मैंने गुलूगीर आवाज में कहा, मगर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे अपने कदमों पर पड़ा रहने दो तहजीब मालकम एक्स, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं मेरे बराबर है, तहजीब ने कहा और मैं हंसता हुआ उठकर उसके बराबर सोफे पर बैठ गया। साइड टेबल से राइटिंग पैड उठाकर मैंने उस पर लिखा। बज़ाहिर तो यहाँ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तहजीब जिससे शुबा हो कि ओशील हमारी गुफ्तगू सुन सकेगा, इसके बावजूद हम मोहतात रहेंगे। तहजीब ने मेरे हाथ से बाल पॉइंट लेकर लिखा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अब ये बताओ कि ओशील मिकाइल के साथ क्या सलूक करने का इरादा रखती हो? उस कमबख्त का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक होगा, तहजीब ने कहा। मुमकिन है वो कोई नई चाल चलने की तैयारियां कर रहा हो। फिल वक्त तो इसके इम्कानात जरा कम ही नजर आते हैं। फार्मूले हासिल किए बगैर वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या ख्याल है, रकम की वसूली की रसीद लेकर उसे यहीं कत्ल करके निकल चलें? इस बारे में अभी कोई फैसला करना कबल अज वक्त होगा। मालूम नहीं हालात क्या करवट इख्तियार करें। जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। मैंने सर हिलाकर तहजीब से मुत्तफिक होने का इजहार किया और जिस कागज पर हमने लिखा था उसे जलाकर राख गुसल खाने में बहा दी। एहतियातन पैड के मजीद 2-3 कागज और जला दिए ताकि सादा सफात पर तहरीर का कोई निशान बाकी न रह जाए जिसे पढ़ा जा सके। वो रात और उसे अगला दिन और रात हमने ओशील मिकाइल के मेहमान के तौर पर सुकून से गुजारे। मुलाजमीन हमारी जरूरियात का पूरी तरह ख्याल रख रहे थे, जबकि ओशील मिकाइल दिखाई नहीं दिया था। हमने भी उसके बारे में किसी से पूछने की जहमत नहीं की। गोटे हिल के बैंक से रकम की वसूलियाबी की रसीद आने में कुछ वक्त तो लगना ही था। तीसरे रोज सुबह ही सुबह हमें तोआम गाह में ले जाया गया।
जहाँ खाने की मेज पर ओशील मिकाइल भी मौजूद था। हमें देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और उसने एक फाइल निकाल कर हमारे सामने रख दी। ये लो, मैंने रकम जमा करा दी है, कागजात चेक कर लो। उसने कहा, रकम तो पूरी जमा कराई है ना ओशील? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कागजात गवाही देंगे कि मैंने पूरे 75 मिलियन डॉलर ही जमा कराए हैं। दरअसल तुमसे डर ही लगता है, तुम बिजनेसमैन हो ना, और तुम्हारे तिजारती नजरियात जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ओशील मिकाइल का चेहरा मारे खफत के सुर्ख हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का फैसला कैसे होगा ओशील कि ये कागजात जाली नहीं हैं? तहजीब ने कहा, तुम्हें इख्तियार है कि तुम में से कोई एक जाकर इन कागजात की तस्दीक कराए, लेकिन तस्दीक होने तक बकिया 2 अफराद को यहीं रुकना होगा। लेकिन ओशील, मैंने कहा, इस काम में तो कई दिन लग जाते हैं, तुमने एक ही दिन में ये सारा काम कैसे कर लिया? मुझ पर बिला वजह शुबा मत करो, ओशील ने नागवारी से कहा। मैंने रकम बहुत अर्जेंट तरीके से भेजी है और इतनी जल्दी रसीदें मंगवाने में मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महज इस मामले की अहमियत के पेश नजर मैंने इतनी जल्दी की है, वरना ये इतना आसान काम नहीं था। इसीलिए तो मुझे हैरत हो रही है मिस्टर ओशील, मैंने कहा और फाइल खोलकर अपने सामने रख ली। रसीदों की जांच पड़ताल मैंने बहुत बारीक बीनी से की, इसलिए कि उस कमबख्त से किसी भी धोखेबाजी की तवक्को की जा सकती थी। कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद मैंने फाइल तहजीब की तरफ बढ़ा दी। तहजीब के बाद जाहिर ने भी कागजात चेक किए। ओशील मिकाइल खासी बेचैनी से हमें देख रहा था। कागजात की असली होने की तस्दीक करने के लिए तुम में से कौन जाएगा? उसने पूछा। बज़ाहिर तो इन कागजात में कोई गड़बड़ नहीं मालूम होती, मैंने कहा, ताहम इस ज़मन में हतमी फैसला मैडम एक्स ही करेंगी, इसकी जरूरत नहीं है। तहजीब ने कहा, कागजात असली ही मालूम होते हैं। इसके अलावा मिस्टर ओशील से ये तवक्को भी नहीं की जा सकती कि इन्होंने मजीद कोई हमाकत की होगी। यानी आप इन कागजात से पूरी तरह मुतमईन हैं? ओशील ने बेताबी से पूछा। हाँ, तहजीब बोली, मैं इन कागजात से पूरी तरह मुतमईन हूँ। गोया अब हम मतलब की बात कर सकते हैं। ओशील मिकाइल ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि अब डिफोस्टर और फार्मूले तुम्हारे हवाले कर दिए जाएं? हाँ, ओशील ने कहा, अब तो मैंने जुर्माने की रकम भी अदा कर दी है। क्या तो तुम ठीक रहे हो? तहजीब कुछ सोचने की अदाकारी करते हुए बोली, लेकिन ये बताओ कि माल यही मंगवा दिया जाए या तुम हमारे साथ चलोगे? मुनासिब तो यही रहेगा कि वो चीजें आप यही मंगवा लें। ओशील मिकाइल बोला, बिल्कुल मंगवा देते ओशील, लेकिन मुश्किल ये है कि इस काम के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा। तहजीब ने कहा, तो आप तीनों में से कोई एक जाकर उन्हें ले आए, बकिया 2 आदमी यहीं रुक जाएं। ऐसी भी क्या बेअतबारी मिस्टर ओशील? तहजीब मुस्कुराई, बेफिक्र रहें, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? ओशील मिकाइल ने असरार किया। फार्मूले और डिफोस्टर को लाने के लिए एक आदमी भी बहुत काफी है। यही तो मुश्किल है मिस्टर ओशील। तहजीब तवील सांस लेकर बोली, डिफोस्टर और फार्मूले के हुसूल के लिए हम तीनों का जाना बहुत जरूरी है।